So now let us discuss the main metabolic pathway of glycolysis. So the glucose is now inside the cell and it will begin its process of glycolysis. The first step in glycolysis is glucose converted into glucose 6 phosphate. ये सबको पता है, सबको ये भी पता है एटीपी इसमें ब्रेक होता है, हेक्सोकाइनेज उसमें यूज होता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूँ कि हाउ ऑल दिस हैपन. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मेरे को लगा आपको बताना चाहिए. ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. अब इस ग्लूकोज के 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है. अब ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से, फ्रॉम वेयर डज दिस फॉस्फेट ग्रुप केम. तो देखिए हेक्सोकाइनेज या फिर लिवर के अंदर जब ग्लूकोज एक्सेस में होता है तब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ने वर्क किया और एक एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ. एक एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ. उस एटीपी के ब्रेकडाउन से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकली, उस एटीपी के ब्रेकडाउन से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकली, उस फॉस्फेट ग्रुप को इस ग्लूकोज में ऐड कर दिया. किस एंजाइम ने, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज ने. तो व्हाट डज काइनेज एक्चुअली डू? द काइनेज क्लास ऑफ एंजाइम्स do the phosphorylation. It can do phosphorylation either of ADP or it can do phosphorylation of its substrate. There are two conditions of kinases. Either they can do phosphorylation of ADP to form ATP, or it can take the phosphate group from ATP and phosphorylate its substrate. This is how the mechanism occurs. Now the second step will be conversion of glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate Now glucose is being converted into fructose. Glucose is aldehyde and fructose is ketose, and aldehyde and ketone are isomer, functional isomers of each other. So the enzyme will be used as isomerase, and since this is a 6 carbon compound and phosphate is being attached to them, then the enzyme will be phosphohexoisomerase. Phosphohexoisomerase. Okay, the next step would be fructose 6 phosphate will be converted into fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphate. Now here another phosphate is being added. Okay, so the enzyme will be a kinase and an ATP will also be broken down to release inorganic phosphate. Same concept, ADP plus inorganic phosphate under the influence of enzyme phosphofructokinase. Now if we will go in a little deep detail, I would write it phosphofructokinase type 1. Why? I will show you. Okay, so phosphofructokinase 1 will convert fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate. And a second series of reaction also continues. Fructose 2,6 bisphosphate. And this is by the enzyme phosphofructokinase type 2. And this fructose 2,6 bisphosphate increases the activity of phosphofructokinase 1. That is, it is a allosteric activator of phosphofructokinase 1 to produce fructose 1,6 bisphosphate, and hence it favors glycolysis. Okay, we will see in regulation how it actually works. Okay,
So fructose 1,6 bisphosphate is produced. Now coming to the next step, fructose 1,6 bisphosphate. Okay. Now fructose 1,6 bisphosphate will be now cleaved. Cleavage will occur. Cleavage means breaking. Now it will be broken down into 2 3-carbon compounds. One is dihydroxyacetone phosphate and second is glyceraldehyde 3-phosphate. And this cleavage is being regulated by an enzyme known as aldolase. Not the usual lase that you consume, it is aldolase. Aldolase. Why the name aldolase? Because if we will do the reverse reaction, that is, if we will reverse this reaction, then this reaction will be an aldol condensation reaction, and hence the name of enzyme is aldolase. You may have read, you may have learned the aldol condensation reaction in organic chemistry class 12. Okay? Now what happens? The DHAP and glyceraldehyde 3-phosphate are interchangeable, they are interconvertible. So the interconversion occurs between them. Okay, and this interconversion is guided by an enzyme which is known as, see, phosphate group is added, both are trio sugar and both are isomers, then the name will be phosphotrio-isomerase. Phosphotrio-isomerase. ओके, अब एक बात खास बात ध्यान रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस आगे कंटिन्यू होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के थ्रू, तो अगर डीएचएपी को ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करनी होगी तो उसे किसमें कन्वर्ट होना होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब इस साइकिल में मैं पूरी साइकिल सेम रखूंगा, मैं बस क्या करूंगा कि जो जो एनर्जी डीएचएपी के थ्रू भी निकलेगी उसको मैं एक साथ लिख दूंगा। कैसे, मैं अब ये समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से बनेगा हमारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट भी ऐड हो गया है, इसको किस एंजाइम ने गाइड किया होगा देखते हैं। तो इस एंजाइम का नाम है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब काइनेज नहीं है, अब है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए, डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? किसी में से हाइड्रोजन निकालेगा, किसी में से हाइड्रोजन निकालेगा और वो हाइड्रोजन किसी को दे देगा। अब देखिए, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन हो सकता है? एफएडी पॉजिटिव, एनएडी पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब वो हाइड्रोजन डोनेट किसने किया? सो द डोनेटर ऑफ हाइड्रोजन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. Glyceraldehyde 3-phosphate has donated its hydrogen atoms to NAD positive, and hence NAD positive is being reduced into NADH, and successively this reaction also add a phosphate group to the molecule, and hence we gave 1,3-bisphosphoglycerate. So glyceraldehyde 3-phosphate has done what it has done? It has produced NADH, ठीक है, with successive phosphorylation. This is the process going on, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके भी जो एनर्जेटिक्स होंगे, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इसी में इंक्लूड करूंगा। तो देखिए, एक साइकिल तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से चलेगी, तब NADH प्रोड्यूस होगा। एक साइकिल DHAP से जब चलेगी तब भी NADH प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? 2 reducing equivalent, 2 reducing equivalent, क्या बोलेंगे? reducing equivalent, ठीक है। चलिए, ये बात तो खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट।
शेयर जरूर करिएगा इसको। अब 1,3-BPG से क्या होता है, 3PG बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यानी इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि उसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे प्रेजेंट था उसको क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज किसको दे दिया था उसने दे दिया ADP को और बना दी एक ATP। अब देखिए यहां पर भी एक फॉस्फेट ऐड हुआ है तो काइनेज होगा, ठीक है। तो इस एंजाइम का नाम क्या रखेंगे हम, इस एंजाइम का नाम क्या रखेंगे हम, बताइए। चलिए 1,3-BPG कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट with the production of ATP, and the enzyme involved is phosphoglycerate kinase. Phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate kinase, as simple as that, ठीक है। अब देखिए एक एडिशनल रिएक्शन होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसके अंदर 2,3-PPG भी बनता है ना। तो अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन होती है आरबीसी के अंदर, केवल आरबीसी के अंदर, वो क्या होती है, 1,3-BPG कन्वर्ट होता है 2,3-BPG में बाय एन एंजाइम नोन एज बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है, BPG म्यूटेज। अब म्यूटेज क्लास ऑफ एंजाइम जनरली क्या करता है, ये एक ही कंपाउंड के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है या जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। यहां पर फर्स्ट और थर्ड कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप था, म्यूटेज में क्या किया, जो फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको सेकंड कार्बन पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज में ये किया। अब 2,3-BPG will convert into 3PG by BPG phosphatase, ये वापस। तो ये एक एक्स्ट्रा साइकिल किसमें रन करती है, रेड ब्लड सेल्स में, और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रैपोपोर्ट ल्यूपिंग साइकिल। रैपोपोर्ट ल्यूपिंग साइकिल, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, रैपोपोर्ट ल्यूपिंग साइकिल इसको बोलते हैं। चलिए अब 3PG पे हमारा प्रोसेस आ चुका है, अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहां पर फिर से फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पर चला गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, ग्लिसरो म्यूटेज, ठीक है। अब ये 2PG किसमें कन्वर्ट होता है, PEP में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इसका जो एंजाइम होता है वो होता है इनोलेज। इनोलेज इसका एग्जांपल होता है, और इस स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल चूंकि रिलीज हुआ है इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग स्टेप। डिहाइड्रेटिंग स्टेप भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप है, इनोलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट। लास्ट स्टेप पीपी से पायरुवेट बनना बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेज। काइनेज है तो फॉस्फोराइलेट हुआ होगा। अब देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी इसमें एक फॉस्फो ग्रुप है, काइनेज लगाया है, तो यानी यहाँ क्या बनेगा, एटीपी बनेगी। एडीपी में एक फॉस्फेट का एडिशन हो गया, ये वाला फॉस्फेट, और क्या बन गया, एटीपी। अब 2 एटीपी यहां पर फिर बनेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा पायरुवेट एसिड बन गया। ये हमारी टोटल पूरी साइकिल हो गई। अब एक बार हम इसका एनर्जी कंजप्शन और टोटल हम इसका कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई भाई ये देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारी 2 एनर्जी खर्च हुई थी, 2 एटीपी खर्च हुई थी।
उसके बाद 2 NADH पॉजिटिव हुए। अब अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक NADH2 विल गिव 3 ATP, और अगर आप MBBS पढ़ रहे हैं तो एक NADH2 विल गिव 2.5 ATP। तो उस हिसाब से अगर आप देखें नीट MBBS, ठीक है, अगर आप MBBS वाले हैं तो देखिए 2 NADH2 बन रहे हैं तो 2.5 दूनी 5 ATP, 2 ATP फिर फर्दर बनी थी तो 4 ATP, टोटल ATP कितनी हुई 9 ATP, खर्च कितनी हुई थी 2, तो टोटल नेट गेन कितना हुआ ATP का 7 ATP का। ये तो याद रखना MBBS वाले। अब नीट वाले क्या होगा, 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए तो यानी 6 ATP उनसे, और 2 2 4 10, और खर्च कितनी हुई 2, तो माइनस, तो 10 - 2 यानी 8 ATP। आपको 8 ATP लिखना है, आपको 7 ATP लिखना है, सो माइंड इट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस की।